Good morning, students. Myself Sushil Kumar, your math teacher. Today I am going to teach class 7. This is for class 7. This is for class 7. And the topic is parallel line. First of all, you have to know the definition of parallel line. What is the definition? Two or more lines. It may be, this is two or more line, maybe three or four. Two or more lines are called parallel lines if they never intersect. Means line, the straight path which have no end point. So this, if I take two lines, means only two lines, just for example only two lines, L and M, means if I extend both line in both direction, if it never intersect, then these lines are called parallel line. The another definition is two or more lines are called parallel line if the distance between them, means this is the distance between them, means perpendicular distance, are always same. For example, this is 4 centimeter, then this is also 4 centimeter, this is also 4 centimeter. Then these lines are called parallel line. Now, if any other line which intersect both lines, then this line is called transversal. Now, angles related to parallel lines and the relation between them. First of all, see here, angle 1, I name it as angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7, angle 8. See here, this is L parallel to M. This is denoted, if you want to write in short form, then write it as L. This is parallel to. This is the sign of parallel to. L parallel to M. That is, it is in short form. Now, here see here, there are 8 angles. Angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7, angle 8. Now, first see exterior angle. EXTERIOR, exterior angles. Exterior means bahar ka angle. This line means these two parallel line means L and M act as a wall, means from here to here it is inside, and outside this line M and outside this line L, or exterior angle. So exterior angle what? Angle 1, angle 2, here angle 7, and here angle 8. Now, next, interior angles. Here see here, angle 3, angle 4, angle 7, and angle 8. These are interior angles. Now, the other angles are corresponding angles. Corresponding angles. Corresponding angle are, first you have to understand what is corresponding angle here. Just here it is right क्रॉस, मीन्स अगर हम सिंपली समझे तो जैसे ये दोनों लाइन है, तो एक अगर हम बाहर का ले तो दूसरा हमको इसको क्रॉस कर जाना है, मीन्स बगल का जो एंगल है उसको छोड़ देना है. यहां से इसको क्रॉस करेंगे तो जस्ट यहाँ जो एंगल आ रहा है सेम साइड, इसे ध्यान रखना है कि जो ट्रांसवर्सल है उसका सेम साइड होना है. मीन्स एक अंदर का तो एक बाहर का, या एक बाहर का तो एक अंदर का. मीन्स यहाँ से
एंगल 1 एंड एंगल 5। मीन्स अगर हम एक यहाँ का ले, ध्यान रखना है कभी भी एक ही जगह से एंगल नहीं लेना, क्योंकि पैरेलल लाइन ये दोनों है, तो एक एंगल यहाँ से और एक एंगल यहाँ से होना चाहिए, तभी वो रिलेशन हम लोग दिखला सकते हैं। तो यहां से अगर एक एंगल 1 लिए तो दूसरा हमको क्रॉस करके, मतलब बगल का एंगल छोड़ के, दिस इज एंगल 5। नेक्स्ट अगर हम यहां से 3 ले तो क्रॉस करके एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। नाउ नेक्स्ट हियर इधर से सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल 2, इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट मीन्स इसको क्रॉस करके एंगल 6, एंगल 2 एंगल 6। उसके बाद यहां से अगर एंगल 4 ले, इसको क्रॉस करके एंगल 8, एंगल 4 एंगल 8। दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा ध्यान रखना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसका जो रिलेशन है ये ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल। मीन्स अगर हम यहां से देखें तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। मीन्स अगर टू लाइन्स पैरेलल लाइन है तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। नाउ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहां समझना है अल्टरनेट। फर्स्ट अल्टरनेट वर्ड का मतलब समझ, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, मतलब कोई भी इंटरवल ले, जैसे हम 2 डेज की बात करें तो 2 दिन लिए तो 2-2 दिन छोड़ के, मतलब 2 दिन लिए फिर 2 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़, मतलब अल्टरनेट जो भी है, मतलब एक आज हुआ तो नेक्स्ट डे नहीं, फिर नेक्स्ट, ये होता है एक तरह से। यहाँ पे अल्टरनेट का मतलब कि अगर हम लोग ट्रांसवर्सल के अगर इस साइड ले रहे हैं तो दूसरा हमको उस साइड लेना, मतलब सेम साइड नहीं, ये अल्टरनेट का मीनिंग है। दूसरा चीज इसमें जुड़ा हुआ है इंटीरियर, मतलब हर हाल में सिर्फ हमको अंदर का ही एंगल लेना है। मतलब मेरे पास इंटीरियर एंगल ध्यान से देखा जाए तो ये सिर्फ 4 एंगल है, ये 4 एंगल है मेरे पास इंटीरियर एंगल्स। मीन्स मेरे पास सिर्फ ऑप्शन है एंगल 3, एंगल 4, एंगल 7, एंगल 8। और एक चीज और बतलाए, कभी भी बगल का एक ही जगह का एंगल नहीं ले। मीन्स अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बात करें तो यहां से अगर इधर से एंगल 4 ले ले तो हमको बगल का तो लेना नहीं है कभी भी, मतलब एक ही जगह का, तो नेक्स्ट हमको एंगल 5 का लेना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट जुड़ा हुआ, मतलब एक इस साइड का तो एक इस साइड का। दूसरा अगर यहां से एंगल 3 ले तो इधर हमको एंगल 6 हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी ऑलवेज इक्वल होता है। मीन्स एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। नाउ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे अल्टरनेट का मीनिंग तो हम ऑलरेडी समझा चुके हैं यहाँ पे। अब चूंकि यहाँ इंटीरियर था, जस्ट इसका अपोजिट है एक्सटीरियर, मतलब मेरा एक्सटीरियर मीन्स मेरे पास सिर्फ ये 4 ऑप्शन, मीन्स जो भी हम लोग लेंगे ट्रांसवर्सल के अगर लेफ्ट में लेते हैं दूसरा हमको राइट में लेना पड़ेगा, और एक ही जगह का नहीं होना चाहिए, और सारा का सारा एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ से एंगल 1 ले तो बाहर का ही एंगल मेरा ट्रांसवर्सल के इस साइड क्या हो जाएगा 8, मीन्स एंगल 1 एंगल 8, ये क्या हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंड अगर यहां से एंगल 2 ले लेते, यहां से एंगल 7। एक चीज ध्यान रखना है कि ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है, वो भी ऑलवेज इक्वल होता है। मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। नाउ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। को मतलब होता है एक्चुअली सेम, मतलब अगर हम ट्रांसवर्सल का बात करें तो सेम मतलब जो भी लेंगे इस साइड या जो भी लेंगे इस साइड होना चाहिए, तो ये को का मीनिंग है। इंटीरियर मतलब अंदर, मतलब मेरे पास सिर्फ ये 4 ऑप्शन और सेम साइड होना चाहिए। और हम पहले बताए एक जगह का एंगल कभी नहीं लेंगे, मतलब 3, 4 एक साथ नहीं ले सकते, 6, 7 एक जगह, क्योंकि इंटीरियर का बात करें तो मेरे पास यही 4 ऑप्शन, 3, 4 एक साथ नहीं, ये दोनों एक साथ नहीं, और सेम मतलब हमेशा एक साइड का लेना। मीन्स यहां से अगर यहां से अगर 3 ले ले तो यहां से मेरे पास एंगल 5 होगा, ये को इंटीरियर एंगल। अगर इधर से हम एंगल 4 ले ले तो इधर से मेरा एंगल 6 हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है, को इंटीरियर एंगल जो होता है इसका सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है।
मतलब अगर हम ये दोनों को ऐड करें तो ये मेरा जो वैल्यू आएगा हमेशा 180 डिग्री आएगा। उसी तरह ये दोनों अगर हम ऐड करें तो वैल्यू जो मेरा आएगा 180 डिग्री आएगा। मीन्स सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। इसमें ध्यान रखना है कि थ्री टाइप्स ऑफ एंगल है मेनली, तो ये जो 4 टाइप्स है इसको ध्यान रखना। और इसमें से जो 3 टाइप्स है वो इक्वल होता है, मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल, एंड द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। चलो इससे हम एक एग्जाम्पल सिंपली लेते हैं, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये 2 लाइन पैरेलल दिए हुए, मीन्स दिस इज ट्रांसवर्सल, दिस इज डिनोटेड बाय T, दिस इज L, M, means here L parallel to M, it is given, and you have given here maybe just take 100 degree. You have to find this angle X, Y, Z and A. Since L parallel to M, means your question is actually see the figure given L parallel to M and this angle equal to 100 degree, and you have to find angle A, angle X, angle Y and angle Z. So how it is it could be find, just see here, I tell you already this and this angle, what how it is related, this is corresponding angle, and you know that corresponding angle are equal. So angle A, since L parallel to M, therefore angle A equal to 100 degree. Why? It is corresponding angles. Now just see, if you see here, this is a line and this is straight angle, means the relation is linear pair. So Z plus 100 degree equal to 180 degree. Reason, this is linear pair. So Z equal to 180 degree minus 100 degree. So Z equal to, means angle Z actually, angle Z equal to 80 degree. Reason is linear pair. Now Z equal to X, relation alternate interior angle, and alternate interior angle are equal. Angle X equal to angle Z, relation alternate interior angles. So angle X equal to, the value of Z is here, see here, 80 degree. So X is also 80 degree. Now see the relation between them. You also see the relation between them, alternate exterior angle. Just angle Y equal to 100 degree. Why? Alternate exterior angles. In this way you can solve the question related to parallel line. Thank you.